Okay, students, before starting constructing the experiments of our syllabus, that is practical of geography, first semester, and there are maps and their types and construction methods, and map scales are in our syllabus. Before starting the composition of our experiments, we should have some instruments. Those are very crucial or essential for us to prepare our sheets of practical copy. The first and the very crucial instrument, that is pencil. We should have a pencil. Another one is a ruler, and we call it a scale also, and we call it a futa, and in some other, that is Hindi language. We should have a eraser, that is a we also call it rubber, and we should have a pencil sharpener. So these are the crucial or essential instruments we should have with us before starting constructing the practical sheets of our syllabus. Okay. The first thing we have to do, that is we construct the boundary on our drawing sheet, and this is called a drawing sheet, and you can obtain this drawing sheet from any bookseller, or you can say any stationery vendor. And the measurement of this practical sheet is 35 centimeters into, you can take it from your stationery vendor by telling him that we need a 35 centimeter into 28 centimeter drawing sheet. This is the measurement of this drawing sheet, and we can obtain this drawing sheet from any of a bookseller or a stationery vendor from any city. And this is the measurement, that is 35 centimeter into 28 centimeter. In other words, we can say the length of this drawing sheet is 35 centimeter, and the width of this drawing sheet is 28 centimeter. Okay, that is 35 into 28 centimeters. That is the measurement of this practical, or you can say drawing sheet. And okay, we are starting our work, and what we have to do at first, that is we construct the boundary on this drawing or practical sheet. हमको करना क्या है कि this is a drawing sheet, this is the right hand side of this drawing sheet, and this is the left hand side of this drawing sheet. हमको करना क्या है कि इसके राइट हैंड साइड, अपर साइड और लोअर साइड में हम क्या करेंगे, इसके एज से हाफ इंच छोड़ के जो है बाउंड्री लगा लेंगे इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड में पूरा 1 इंच छोड़ेंगे, तब बाउंड्री लगाएंगे. ठीक है, तो हाफ इंच मैंने यहाँ से इसके छोड़ दिया है. दिस इज ए रूलर, एंड देयर आर सम मार्किंग ऑन दिस रूलर. इसके एक एज पे जो है
ये जो छोटी मार्किंग की हुई है दैट इज सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये जो रूलर होता है उसकी लेंथ जो है टोटल लेंथ 1 फुट होती है, और इसके अनदर एज पे जो है बड़ी मार्किंग है दीज आर इंचज़, ठीक है। एंड 1 फीट में 12 इंचज़ होती हैं, आप सभी को पता है। तो सबसे पहले अगर जब मैं बोलूँ इंच दैट इज द वाइडर मार्किंग ऑन दिस रूलर, एंड जब मैं बोलूँ सेंटीमीटर्स दैट इज द नैरो मार्किंग ऑन दिस रूलर। ये सेंटीमीटर्स 30 हैं, इस पे 12 इंचज़ हैं, और इनको 12 इंचज़ को फर्दर 10 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये सेंटीमीटर्स जो हैं इनको फर्दर जो है 10 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 10 सब पार्ट्स ऑफ ए सेंटीमीटर दैट इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, इसी तरह 1 इंच को जो है 10 सेम पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जब मैं इंच बोलता हूँ तो ये साइड है रूलर की, और जब मैं सेंटीमीटर बोलता हूँ तो ये साइड है रूलर। तो अब मैं आधा इंच की मार्किंग कर लूँगा इस ड्राइंग शीट के एज से, ये आधा इंच मैंने मार्किंग कर ली है, ठीक है। आधा इंच यहाँ पे मार्किंग करूँगा ताकि जो है हमारी जो बाउंड्री है वो सीधी रहे, टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, दोनों तरफ हमें मार्किंग करनी है। और मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड में भी आधा इंच की जो है मार्किंग मैं करूँगा, दो जगह करूँगा मार्किंग, ताकि जो है जो हमारी बाउंड्री लाइन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी या जो है गलत ना हो जाए। तो आधा इंच की जो है तीन साइड कौन सी हैं, अपर साइड, लोअर साइड एंड राइट हैंड साइड। तो 3 साइड में जो है मैंने इसकी ऐसे करके मार्किंग कर ली और इसकी बाउंड्री लगा ली, ठीक है। ऐसे करके मैं इसकी बाउंड्री जो है वो ड्राइंग शीट के ऊपर बाउंड्री जो है मैं लगा देता हूँ, और हमारा जो भी आगे का जो है काम शुरू होगा इसके बाद ही शुरू होगा। सबसे पहले जो है आपको कुछ भी ड्राइंग शीट पे बनाने से पहले इसकी बाउंड्री जो है लगानी है। और ये 3 साइड में मैंने आधा इंच छोड़ के जो है एक 3 साइड में बाउंड्री मैंने लगा ली है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये बाउंड्री जो है वो 1 इंच एज से, ड्राइंग शीट के एज से 1 इंच छोड़ के लगानी है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो है बाउंड्री जो है वो 1/2 इंच की बजाय 1 इंच हो जाएगी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये हमारी ड्राइंग शीट जो है हमारी प्रैक्टिकल कॉपी में पंच हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ जो है जो बाइंडिंग है हमारी प्रैक्टिकल कॉपी की, उसके अंदर ये एज जो है शीट का वो उसके अंदर ओवरलैप हो जाएगा, यहाँ से पंच होनी है ये शीट। सो दैट्स वाई वी हैव टू कंस्ट्रक्ट आवर लेफ्ट हैंड साइड बाउंड्री बाय लीविंग ए एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ 1/2 इंच, ठीक है। 1/2 इंच इसमें पंच हो जाएगी, 1/2 इंच फिर दिखती रहेगी इनकी तरह, ठीक है। दिस इज आवर प्री कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सबसे पहले हमें करना है, ठीक है। उसके बाद लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू इन आवर एक्सपेरिमेंट। हमारे पास जो है जो क्वेश्चंस आएंगे या जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो इस तरह से आएंगी। हमें बोला जाएगा ड्रॉ ए प्लेन स्केल, यू कैन सी दिस क्वेश्चन और एक्सरसाइज, और these are the exercise we have to compose and put into our geography practical copy, and this is how ये आएंगी हमारी एक्सरसाइजेज। ड्रा ए प्लेन स्केल फॉर ए मैप, एक हमारे पास मैप है उसके लिए प्लेन स्केल जो है ड्रा कीजिए, मतलब डायग्रामेटिक प्लेन स्केल बनाना हमें। मैप हैविंग, एक मैप है जिसकी RF है, स्केल जो है उसका RF में दिया गया है 1:2
2,50,000. 1:2,50,000. In other words, we can say the scale like this: 1:2,50,000. In other words, we can also say it like 1:2,50,000, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1:2.5 लाख. ठीक है. दिस इज द स्केल ऑफ ए मैप. फॉर दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए डायग्रामेटिक स्केल. ठीक है. हमारे पास उसका स्केल है, उसके लिए हमें डायग्राम बनाना है, और उस डायग्राम के ऊपर डिस्टेंसेज जो है इसमें लिखा हुआ शो द डिस्टेंसेज ऑफ 1 किलोमीटर ऑन दिस स्केल. एंड यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि वो जो डायग्राम बनेगा स्केल के, उसके ऊपर जो है डिस्टेंसेज जो है वो किलोमीटर्स में दिखाने हैं. ठीक है. सो वी अंडरस्टूड द थिंग्स कि हमें जो है जो मैप का स्केल है वो 1:2.5 लाख है, 1:2,50,000 है, और उसके ऊपर उसका हमें एक डायग्राम बनाना है, और उस डायग्राम के ऊपर डिस्टेंसेज जो है वो किलोमीटर में शो करने. तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. दैट इज नॉट ए बिग डील, और हम वो कर लेते हैं. लेट अस टेक द RF ऑफ द मैप. RF ले ली हमने. RF इज इक्वल टू 1:2,50,000. यहाँ से इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस 2,50,000 को किलोमीटर्स में. तो यहाँ से RF में लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 1 रहता है, और इस 2 के सिंबल के बाद हमेशा एक और यूनिट रहती है जो दैट इज बिगर देन, ऑलवेज बिगर देन 1. ठीक है. अब इस 2 के सिंबल को हटा के हम इज इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे, और दोनों तरफ जो है एक जो है मेजरमेंट की यूनिट ले लेंगे. अब ये कौन सी यूनिट लेनी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है. अगर हमें किलोमीटर लिखने स्केल पे तो हम सेंटीमीटर लेंगे, बिकॉज द सेंटीमीटर इज द सब यूनिट ऑफ किलोमीटर. अगर यहाँ पे माइल लिखा होता तो हम क्या लेते, इंचीज लेते. ठीक है. तो हमें किलोमीटर करना है, तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ सेंटीमीटर ले लिया. इसका मतलब ही यही है कि मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर और अर्थ सरफेस के ऊपर 2.5 लाख सेंटीमीटर जो है रिप्रेजेंट करता है ये स्केल. इस स्केल का मतलब क्या, 1:2,50,000 का मतलब क्या है कि मैप के ऊपर एक यूनिट अर्थ सरफेस के 2.5 लाख यूनिट को रिप्रेजेंट करती है. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 लाख सेंटीमीटर. दिस इज द सेम थिंग दैट इज रिटन ऑन द अपर साइड. और लेट अस टेक सेंटीमीटर बोथ साइड टू कैलकुलेट किलोमीटर. दोनों तरफ हमने सेंटीमीटर लेना है. क्यों? क्योंकि किलोमीटर बनाना है. किलोमीटर की सब यूनिट सेंटीमीटर होती है. तो यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे कराना, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख. ये ऐसा क्यों किया हमने? 2.5 लाख को 1 लाख से डिवाइड क्यों किया? बिकॉज 1 लाख सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर होता है. इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना था हमने, ऊपर वाली यूनिट को. ठीक है. अब आप कहोगे कि ये जो है 1 लाख इसलिए, ठीक है, इसलिए लिया है क्योंकि 1 लाख सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर होता है. तो 2.5 लाख सेंटीमीटर का यहाँ पे 2.5 किलोमीटर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो. ठीक है. उसके बाद यहाँ से क्लियर हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर. ठीक है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर. ठीक है. और हमें इस कागज के ऊपर, इस ड्राइंग शीट के ऊपर एक लाइन लेनी है, लाइन वाला डायग्राम बनाना है दैट शोज द डिस्टेंसेज ऑफ मैप यूनिट एंड द सरफेस यूनिट. सो कितना लंबा हम इसके ऊपर लाइन ले सकते हैं? 12 सेंटीमीटर लंबी. अगर हमें सेंटीमीटर में लेनी तो लगभग 12 सेंटीमीटर, और इंचीज में लेनी है तो 6 इंच बेस्ट रहता है. तो हम यहाँ से हमारा ये आ गया कि 1 सेंटीमीटर तो 2.5 लाख किलोमीटर के बराबर हो गया, और 12 सेंटीमीटर 2.5 गुना 12 सेंटीमीटर दैट इज 30 किलोमीटर. अगर हम इस ड्राइंग शीट के ऊपर 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचते हैं, वो 30 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी, और हमें 30 किलोमीटर के 6 इक्वल पार्ट करने हैं. ठीक है. तो 30 किलोमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन मैप के ऊपर वो सरफेस के 30 किलोमीटर को
रिप्रेजेंट करती है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अब 12 सेंटीमीटर के हमने 6 पार्ट करने हैं। 12 सेंटीमीटर के 6 पार्ट करेंगे तो हर एक पार्ट जो है 2-2 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर का एक पार्ट फिर वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1 सेंटीमीटर कितने को कर रहा है? 2.5 किलोमीटर को। 2 सेंटीमीटर का एक पार्ट बनेगा, 2 सेंटीमीटर कितने को करेगा? 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें हमारे पास क्या आ गया कि 2.5 किलोमीटर को क्या करता है? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और 5 किलोमीटर को कितना करेगा? 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा। हमें टोटल 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन लेनी है। तो 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमको कहाँ पे लेनी है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीट का जो है, जो इस बाउंड्री से इस बाउंड्री, क्योंकि हमारा वर्किंग एरिया ये बाउंड्री के बीच का है। ठीक है, तो 12.5 सेंटीमीटर इसके बीच में आता है, और इधर से लगभग जो है हम इसका जो है सेंटर निकालेंगे। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस ड्राइंग शीट। आप मेजर करके जो है इधर उधर से इसका सेंटर निकाल लेना। और हमें क्या करना है फिर, 30 टोटल जो है हमारा वर्किंग एरिया जो है वो लगभग 31 सेंटीमीटर का बच गया। एंड ठीक है, 15.5 जो है इसका सेंटर आ जाएगा। यहाँ पे इसका सेंटर आया। ठीक है, जो ड्राइंग शीट का सेंटर यहाँ पे आया है, ऊपर से भी अगर आप देखोगे तो ये सेंटर निकल गया। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में बनाना हमारा डायग्राम। डायग्राम जो है मैंने आपको बताया था कि डायग्राम बनाने के लिए हमें 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन लेनी है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड छोड़ना ही सेंटर से, और 6 राइट हैंड साइड। इस तरह करके एक 12 सेंटीमीटर लेंथ की हमने एक लाइन जो है वो ड्रा कर देनी। ठीक है, और इस 12 सेंटीमीटर से ये आपको ध्यान रखना कि ये दोनों तरफ से ये लाइन बिल्कुल ओरिजेंटल रहे, ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो। यहाँ से 12.5 है और यहाँ से ये थोड़ा सा ऊंची होगी, तो हमें 12.5 ही लेनी है। यहाँ पे आनी चाहिए लाइन, तो इस ऊपर वाली को जो हम थोड़ा सा मिटा देंगे, तो ये बिल्कुल ओरिजेंटल रहनी चाहिए लाइन। ठीक है, आपके बिल्कुल ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो, उसके लिए आप जो है सीट के एजिज से मेजर कर लें कि ये सीधी है या नहीं। ये हमने 12 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ले ली। अब इस 12 सेंटीमीटर के क्या करना है, नीचे की साइड में 1 सेंटीमीटर इससे छोड़ के एक मार्किंग कर लेनी है। यहाँ भी एक मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक और लाइन जो है हम फिर इसके ऊपर खींच देंगे। और इसके जो है फिर इन दोनों लाइंस के सब पार्ट्स करने हैं हमें। 12 पार्ट हैं, 12 सेंटीमीटर हैं। 12 सेंटीमीटर के 2-2 सेंटीमीटर का एक 6 सब पार्ट करने हैं। दैट इज 1 पार्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के ऊपर मार्किंग कर देनी है। 6 बराबर पार्ट जो हैं वो आ जाएंगे इसके। ठीक है, ऐसे करके इसके 6 इक्वल पार्ट्स जो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। और फिर इन दोनों लाइंस के बीच में एक और, ठीक है, मेजरमेंट करके ऐसे ही खींचना। 1 सेंटीमीटर की है बीचों बीच, जो इसके एक और आधा सेंटीमीटर की एक लाइन और आ जाएगी, वो इसके बीच में हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 पार्ट जो है, 1 पार्ट इज शोइंग द 1 पार्ट इज शोइंग द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 0 हमने यहाँ से नहीं शुरू करनी, 0 यहाँ से शुरू करनी है। 1 पार्ट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 5 किलोमीटर के। 4 सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे? 10 किलोमीटर्स के। ठीक है, 6 सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे? 15 किलोमीटर्स के। 8 किसके बराबर होंगे? 20 किलोमीटर्स के। ठीक है, 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होंगे? 25 किलोमीटर्स के। यहाँ भी 5 लिखना है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे कर देना है। और जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके फर्दर हमने सब पार्ट करने हैं 5। ठीक है,
12 सेंटीमीटर के 5 पार्ट करने हैं, तो एक पार्ट कितने का आ जाएगा? 2.4 mm का, ठीक है। सॉरी, ये जो है 20 mm हो गया, और इसको 5 से अगर हम 5 चौका 20, 4 mm का एक 4 mm का एक पार्ट आ जाएगा। 4 mm के हर एक 4 mm जो छोटी मार्किंग है दैट इज 4 mm। 8, 12, 16 और 20 ऐसे करके इसके 4 फिर फर्दर इक्वल पार्ट्स हमने करने हैं, ठीक है। और जो 0 से 5 वाला पहला पार्ट उसको ऊपर से ब्लैक करना है ऐसे, फिर 5 से 10 वाला नीचे वाला ब्लैक, 10 से 15 वाला ऊपर वाला ब्लैक, 15 से 20 वाला नीचे वाला ब्लैक, 20 से 25 वाला ऊपर वाला ब्लैक, फिर ये सब पार्ट वाला नीचे वाला ऊपर वाला ब्लैक। ये अलग अलग दिखाने के लिए, जो हमारी यूनिट्स हैं इनको अलग अलग दिखाने के लिए, ये 4 mm इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 8 mm इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये क्या रहेगा 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। इनके ऊपर किलोमीटर भी लिखेंगे हम लेटर। अच्छा, इसके बाद जो है हमने इनके सामने ये, क्योंकि पहले ही हमने पढ़ लिया था कि ये जो डिस्टेंसेस हैं वो किलोमीटर में शो करने हैं, तो आधा इंच के उस पे, ठीक है, आधा सेंटीमीटर के हाइट के जो है हमने किलोमीटर्स लिखने हैं, 25 किलोमीटर्स ऐसे लिखना हम अपने को, KI, ठीक है। आप ऐसे फुटे के साथ ऐसे बना सकते हो इसको, KIL, ठीक है। O भी फुटे के साथ, जिसकी लिखाई अच्छी है, हैंड राइटिंग अच्छी है, वो रफ हैंड से भी लिख सकता है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। किलोमीटर्स की स्पेलिंग आपकी METRES, ऐसे किलोमीटर्स आपको लिख देना, ठीक है। अच्छे जो है, बाकी की फालतू की लाइंस को आपने मिटो देना। इस तरफ भी आपने किलोमीटर्स लिखना है, लेकिन अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो 5 के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, हमारा पूरा जो है वर्ड। अगर दूर से शुरू कर देंगे तो दूर ज़्यादा रह जाएगा, तो उल्टा हमने शुरू करना। किलोमीटर्स की स्पेलिंग की, ठीक है, SERTEMOLIK, इस तरह से हमने किलोमीटर्स जो है दोनों तरफ इनके लिख देना, क्योंकि वी हैव टू शो द डिस्टेंसेस ऑन दिस मैप स्केल इनटू किलोमीटर्स, ठीक है। तो दिस इज द डायग्रामेटिक स्केल, ये हमारा तैयार है डायग्रामेटिक स्केल। इसकी RF कितनी थी? 1:250,000। वो भी हमें RF भी लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन जो हम ड्रॉ कर लेंगे, अड़की सी, आधा सेंटीमीटर के डिफरेंस पे 2 लाइन, ठीक है, जो है ड्रॉ कर लेंगे। इनके बीच में हमने लिखना है RF इज इक्वल टू 1:250,000, ठीक है। दिस इज आवर स्केल इनटू RF, ठीक है। RF की जो फुल फॉर्म है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मतलब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 1। मैप के ऊपर 1 जो है वो अर्थ सरफेस के 250,000 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैप की 1 यूनिट और अर्थ सरफेस की जो है 2.5 लाख यूनिट्स सेम है इस जिस मैप के लिए हम स्केल बना रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये RF लिखना आपको। अब जो सबसे ज़रूरी जो है चीज़ जो हमारी इसके अंदर रह गई है दैट इज द टाइटल ऑफ दिस स्केल, ठीक है। एंड द टाइटल ऑफ दिस स्केल इज प्लेन स्केल, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी हेडिंग लिखेंगे हम प्लेन स्केल नाम से। तो ऊपर से जो है 3 सेंटीमीटर की एक
2.5 या 3 सेंटीमीटर आपका, ठीक है। ये देख लेना कि ये कितना नीचे ऊपर बना, उसी हिसाब से ऐसी जगह पे आए टाइटल की, वो ना ही ऊपर चला जाए बहुत ज़्यादा, ना ही नीचे, कोई भी जगह ना ही खाली बचे, ना ही बहुत ज़्यादा, ठीक है, ओवरलैप हो जाए। तो मैं 3 सेंटीमीटर छोड़ लेता हूँ, आप 2.5 सेंटीमीटर भी छोड़ सकते हैं अगर आपका ये स्केल ऊपर बना। जैसे हम कंपैरेटिव स्केल में ये चौड़ा बन जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर सरका लेंगे, अब थोड़ा नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ऊपर से बाउंड्री से 3-3 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस पे छोड़ के, ठीक है, एक ऐसे हल्की सी लाइन लगा लेंगे हम, बहुत गहरी नहीं लगानी है, बाद में इसको मिटाना। और फिर लगभग 1.5 सेंटीमीटर इससे छोड़ के, 2 सेंटीमीटर का भी आप बड़ा भी बना सकते हैं। मैं ये 1.5 सेंटीमीटर इससे छोड़ के एक और 2 लाइन लगा ली मैंने, ठीक है। ऐसे करके ये मैंने 2 लाइन लगा दी। इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर आपको पता है इसका कितना था, 15.5, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ दीज 2 लाइन्स, ठीक है। अब हमें लिखना है, इसका हेडिंग होता है प्लेन स्केल। पहले आप लिख के रख लें, PLAIN प्लेन, SCALE स्केल। और इसको काउंट करेंगे, ये टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनके बीच में एक स्पेस है, दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो 10 अल्फ़ाबेट्स हो गए और एक स्पेस के नाम का 11 हो गए। तो 11 से हमने आधे जो है इस सेंटर से इधर लिखने हैं, आधे उधर लिखने हैं। तो हम N से शुरू करेंगे, ठीक है, ना कि P से। P से अगर यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर सेंटर से आगे चला जाएगा, पीछे से शुरू करेंगे दूर रह जाएगा। तो हमें N से शुरू करना है, इस तरह से लिखना है, पुटे से N ऐसे लिखना है, N के 2 डंडे, बीच वाला डंडा ऐसे टेढ़ा, ठीक है। फिर I है इसमें, I के लिए बीच का डंडा खींचेंगे। फिर A है, A के लिए A कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसे 2 टेढ़े डंडे, ठीक है। इसके बीच वाला A का बाद में लगाएंगे। फिर L है, L की एक ये थोड़ी सी ऐसे, और L का ये डंडा। फिर P है, P का ये बड़ा छोटा डंडा, उसके बाद बड़ा डंडा, दैट इज प्लेन। प्लेन इज रिटन। एंड उसके बाद S से स्केल लिखेंगे, S का बड़ा डंडा, फिर छोटा डंडा, ऐसे ही S का ये वाला डंडा और ये वाला। फिर C का एक बड़ा डंडा, 2 छोटी छोटी ऐसे, ठीक है। SCA, A के ऐसे 2 टेढ़े डंडे। फिर L का बड़ा डंडा, छोटा डंडा, और E का बड़ा डंडा, 2 छोटे डंडे, बीच में एक और, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमा के जो है आप ऐसे देख लेंगे कि ऊपर जो है कहाँ कहाँ, P L के कुछ नहीं आएगा, I के ऊपर हम थोड़ा सा लगा देते हैं, प्लेन पूरा हो गया। S के ऊपर लगा देते हैं, C के ऊपर लगा देते हैं, L के ऊपर कुछ नहीं आएगा, E के ऊपर लगा देते हैं। इसी तरह से इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको घुमा लेंगे यहाँ से, नीचे से उधर से ही देखेंगे। L का जो है नीचे एक डंडा, I के भी नीचे डंडा, S के नीचे डंडा, C के नीचे, ठीक है, L के नीचे और E के नीचे। और अब बीच वाले देख लेंगे, P के आएगा बीच में, A के आएगा, I N के कुछ नहीं आएगा, S के आएगा, C के कुछ नहीं आएगा, फिर A के आएगा, L के नहीं आएगा, E के आएगा। ऐसे प्लेन स्केल हमने जो है फुटे से जो है या हमारे रूलर से हमने तैयार कर लिया। एक्स्ट्रा की जो लाइंस हैं, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट से एक्स्ट्रा की लाइन है, उनको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। अच्छी तरह इरेज करेंगे ताकि गंदी ना लगे। और अगर साथ में अल्फ़ाबेट्स हमारे इरेज हो रहे हैं तो उनको दोबारा फुटे से हम, ठीक है, एक बार और डार्क कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारा ही ऐसे करके हमने डार्क करने हैं। इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है इज रेडी, एंड यू कैन कंपोज ऑल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लाइक दिस। हमें जो है ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगी या एक्सरसाइजेज मिलेंगी, जैसे ड्रा ए प्लेन स्केल फॉर ए मैप। एक मैप है, उसके लिए प्लेन स्केल ड्रॉ करें जिसका स्केल RF में दिया गया है 1:2.5 लाख, ठीक है। और उसको जो है, और जो उसका डायग्रामेटिक स्केल बनाना हमें ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करके हम ये देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर या कितने इंच बराबर कितने किलोमीटर या कितने माइल्स हैं। और वो कैलकुलेशन करने के बाद जो है इस तरह से ये, जैसे मैंने कंस्ट्रक्ट किया है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच।